Hello and welcome, students. I, Kumar, welcome you again to this amazing platform where we simplify your preparations. So, today in our bag, we have a very important session for you, and that is inequalities. Now, why it's very important? So, I believe you all might have gone through the previous year CAT papers, and you all might have observed that the questions of CAT are not that like that key simply find the value of x. Rather, the question is like that, okay, how many different values x can have? So if a question is like that, so simply by solving an equation, we will not be able to solve it. So for such kind of question, a very handy tool is which is inequalities. Now, if you're someone who has taken maths in your class 11th or 12th, you might be aware of it. But still, what I have seen as a faculty that not many students are confident on it. And if you haven't taken maths in 11 and 12, तब तो आपने inequalities कहीं पढ़ा भी नहीं होगा. So that's why it's a very important session. And just by watching this session, okay, you will be in a position wherein you can solve each and every question which is based on inequalities. All right. So let's, without taking much of your time, let's start with the session. So first of all, so what do you understand by inequalities? For example, if I'm saying that, okay, if x minus 2 is equals to 4, suppose we have this equation to solve x minus 2 equals to 4. Okay, very easily you'll say, oh, so the value of x is what? X is 6. But instead of equality sign, if suppose I'm equals to sign, if I'm removing it or I'm replacing it with another sign, for example, I'm writing like this: x minus 2 should be greater than 4. Now, what do you think? How many values x will have? Just one value, just two, three, or there will be infinite values? So if I have this equation, so I can say that there will be infinite values x can have. And when I'll be solving it further, okay, so I'll be writing that x is greater than 6. So if x is greater than 6, so what all values will qualify this equation? So any value of x will qualify that is more than 6. So if I'll be plotting it on a number line, suppose 6 यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आपका infinity पॉजिटिव infinity है और यहाँ पर आपका नेगेटिव infinity है. नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन इज अ लाइन इन विच ऑल द नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड. ठीक है. So what will be the answer to this question? The answer to this question will be all numbers which are greater than 6. So for this question the answer is this, 6 to infinity. ओके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 6 से लेकर इन्फिनिटी, इसके बीच में जितने भी नंबर्स है ना वो सारे के सारे आपके आंसर्स हैं. तो यहां पर देखो, यहां पर जैसे हमारे पास एक आंसर आ रहा है, इनइक्वालिटी में एक आंसर नहीं आता, वेल हैव अ सेट ऑफ आंसर्स. ठीक है. सो ये बेसिक एक क्या है, एक रिव्यू मतलब ब्रीफ मैंने बताया कि ये इनइक्वालिटी है. लेकिन अब देखते हैं कि इनइक्वालिटीज होता क्या है, कैसे करना होता है, क्या ये होता है. So first of all, let's understand some of the basic properties of inequality. Now, what are these basic properties? अब अगर आपको नाम याद रहता है बहुत अच्छी बात है, नाम नहीं याद रहता तब भी कोई फर्क वाली बात नहीं है. ठीक है, आप सिंपली बस प्रॉपर्टीज ध्यान रखना. जैसे अगर मान लो मैंने आपको बोला दैट इफ ए इज ग्रेटर दैन बी, ठीक है, एंड वी नो दैट बी इज ग्रेटर दैन सी. ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर दैन बी एंड बी इज ग्रेटर दैन सी, so from these two equations or relations can we say that definitely a will be greater than c? Yes or no? सोचो जरा, अगर a जो है वो b से बड़ा है और b जो है वो c से बड़ा है, so definitely it will be कि a जो है वो c से बड़ा होगा. ठीक है. या अगर मान लो तीन भाई हैं, ठीक है, जिसमें से मैंने बोला दैट राम इज एल्डर दैन श्याम. ओके, एंड वी नो दैट श्याम इज elder than Ravi. So can't we say that, oh, Ram is elder than Ravi? Definitely we can say this. So if we can say this, then definitely this is also true. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट, दिस इज द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी. और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्रेटर देन है. ठीक है, ये जस्ट अ मिनट, सॉरी, ये लेसर देन के लिए भी होगा. जैसे अगर मान लो मैंने बोला इफ ए इज लेसर देन बी, ठीक है, एंड we know that b is lesser than c. ठीक है, so definitely we can say that a is lesser than c. लेकिन अगर मान लो आपके पास instead of this अगर ये है a is lesser than b, ठीक है, and b is also lesser than c. Oh, sorry, a is lesser than b and
A is lesser than C. ठीक है, A is lesser than B and A is lesser than C. ठीक है, so can we say that B is greater than, और कैन we, अगर मान लो मेरे पास ये रिलेशन है तो A और मतलब A और C का कोई रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं. मैंने बोला A जो है वो B से छोटा है, ठीक है, और A जो है वो C से भी छोटा है, तो क्या मैं B और C का कुछ रिलेशन स्टैब्लिश कर सकता हूँ? नहीं. ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि B C से छोटा होगा या B C से बड़ा होगा. ठीक है, अगर सेम इनइक्वालिटी है, ठीक है, जैसे यहां पर B है तो मैं यहां पर रिलेशन स्टैब्लिश कर पा रहा हूं, लेकिन यहां पर रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होगा. ठीक है, तो ये जो कॉमन वाला टर्म है वो सेम रहना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है. जैसे अगर ये B है तो यहां भी B होता, देन डेफिनेटली वी वुड हैव स्टैब्लिश अ रिलेशन. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. Moving on to the second property. Now, what is the second property? Second property is the addition property. जैसे for example, can I say that 8 is greater than 5? Is it a true relation? 8 is greater than 5. एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन में कुछ ऐड कर देते हैं. ठीक है, so suppose I am adding 3 to both sides. 8 plus 3 is greater than 5 plus 3. Will this inequality holds? Yes, definitely. This will be 11 and this will be what? This will be 5 plus 3, this will be 8. So is 11 greater than 8? Yes, definitely. So this is what addition property says that. ठीक है, if you are adding any number, ठीक है, the sign of inequality holds. मतलब जो साइन यहां पर था वही साइन वहां पर भी रहेगा. If I am adding any number, ठीक है, any positive number, the sign of inequality will not change. Similarly, अगर मान लो मैंने क्या किया, suppose ये 8 greater than 5 है and from both the numbers I am subtracting 2. ठीक है, इंस्टेड ऑफ एडिंग नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सब्ट्रैक्टिंग 2. तो अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा? 6 विल बी ग्रेटर देन 3. तो यहां पर जो इनइक्वालिटी साइन है, द सेम इनइक्वालिटी होल्ड्स अगेन. सो फ्रॉम दीज टू एग्जांपल्स वी कैन क्लियरली से दैट इफ सपोज वी हैव एन इनइक्वालिटी, ठीक है, एंड आइदर वी आर एडिंग समथिंग और वी आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम दैट इनइक्वालिटी, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज. द साइन ऑफ इनइक्वालिटी होल्ड्स इटसेल्फ. ठीक है, जो साइन पहले इक्वेशन में है वही साइन अभी भी रहेगा. ठीक है, इन अ सिमिलर वे अगेन अगर देखा जाए, इफ 8 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, एंड नाउ इंस्टेड ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, नाउ लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय एनी पॉजिटिव नंबर. मल्टीप्लाई इट बाय एनी पॉजिटिव नंबर. सो फॉर एग्जांपल लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 2. ठीक है, 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो इफ आई विल बी मल्टीप्लाइंग बाय अ पॉजिटिव नंबर, सो व्हाट विल हैपन? 8 into 2 will be 16. ठीक है, and 16 और ये 5 into 2 will be what? It will be 10. So 16 is definitely greater than 10. यानी अभी भी जो आपका इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या रहेगा? That will be intact. ठीक है, so whether you are adding something, you are subtracting something, or you are multiplying with a positive sign, a positive number, the inequality signs doesn't change. But what will happen if instead of multiplying by a positive number, suppose अगर मान लो मैंने एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करिए, जैसे मैं लिखना हूं 8 is greater than 5. अभी तो ये सही है. Let's multiply the complete inequality by -2. तो अगर आप ये -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 into -2 is -16 and 5 into -2 is what? It's -10. So can I say that oh -16 is greater than -10? ऐसा सही होगा क्या? Is -16 greater than -10? आप बोलोगे नहीं नहीं सर, -16 can't be greater than -10. So this is a wrong. Correct inequality will be what? -16 is lesser than -10, or we can say that -10 is greater than -16. तो यहां पर हमने एक चीज देखा, द ओनली टाइम द इनइक्वालिटी विल चेंज. ठीक है, द ओनली टाइम योर इनइक्वालिटी विल चेंज. बाकी कभी भी आपका जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होता. द ओनली टाइम द इनइक्वालिटी इज विल बी चेंजिंग इज व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग बाय अ नेगेटिव नंबर. और वी कैन ऑल्सो से दैट इफ वी आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द इनइक्वालिटी बाय अ नेगेटिव नंबर, इन दैट सिनेरियो ओनली द साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस. बाकी कुछ भी हो जाए, ठीक है, फॉर ऑल अदर सिनेरियोज द इनइक्वालिटी साइंस विल रिमेन इंटैक्ट. कब चेंज होता है? अगर आप किसी इनइक्वालिटी को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो. ओनली इन दैट केस द साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, एल्स इट विल नॉट चेंज. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज आर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आई बिलीव की प्रॉपर्टीज बाकी सारी देखो, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो बहुत सिंपल था. अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या देखा? इफ आई एम एडिंग समथिंग और सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, वेदर आई एम एडिंग अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन एज इट इज.
In case of multiplication, we have to keep in mind, if you're multiplying by a positive number, the sign of inequality will be same. But if I'm multiplying with a negative number, the sign of inequality will change. Alright, so this is the basic property of inequality. अच्छा ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं. तो जैसे मान लो मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पहले से पूछा था. x minus 2 is greater than 4. Suppose we have to solve this equation. x minus 2 is greater than 4. तो इसका आंसर्स क्या क्या होंगे? So when you will be simplifying it, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग आप ये जो इनइक्वालिटी है ना, सिंपली इसे इक्वल्स टू के अकॉर्डिंग समझो. द वे यू वर यूज टू सॉल्विंग द इक्वेशन, आप ऐसे इक्वेशन इसे भी सॉल्व कर सकते हो. सो व्हेन यू विल बी शिफ्टिंग दिस -2 टू दैट साइड, सो व्हाट विल हैपन? x विल बी ग्रेटर देन 6. ठीक है, x विल बी ग्रेटर देन 6. ठीक है, और वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, x minus 6 should be greater than 0. ठीक है, whenever you have a question in inequalities, always make sure कि आपका जो राइट हैंड साइड है वहां पर 0 आना चाहिए. ठीक है, जब भी आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप हमेशा याद रखना कि आपका जो राइट हैंड साइड है वहां पर 0 आना चाहिए. अब इसका मतलब क्या है? देखो, व्हाट आई वांट, आई एम सेइंग दैट, देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर. वन इज पॉजिटिव नंबर, then we have a negative number, and then we have a neutral number. पॉजिटिव नंबर, all numbers which are greater than 0. ठीक है, वो सारे नंबर्स जो 0 से बड़े हैं वो पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, न्यूट्रल नंबर इज व्हाट? एग्जैक्टली, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. अगर मन में कभी भी ख्याल आता है 0 पॉजिटिव है क्या, नहीं, 0 इज अ न्यूट्रल नंबर. और नेगेटिव नंबर क्या होगा? ऑल नंबर्स विच आर लेस देन 0. ठीक है, मतलब वो सारे नंबर्स दैट इज लेसर देन 0 विल बी व्हाट? इट विल बी नेगेटिव नंबर. तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें मुझे क्या चाहिए? x minus 6 should be greater than 0. मीन्स आई हैव टू कीप दोज वैल्यूज ऑफ x, जिससे ये जो पूरा टर्म है वो क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए. बिकॉज व्हाट आई वांट दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होना चाहिए? दिस एक्सप्रेशन वैल्यू शुड बी पॉजिटिव. So what values of x I have to keep so that this expression will become positive? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा. क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? वो सारे वैल्यूज ऑफ x that will make this equation 0. ठीक है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट रूट ऑफ दिस इक्वेशन. सो x minus 6 अगर आपके पास है, सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x that will make it 0? सिंपली आप बोलोगे सर 6. So whatever are the roots of this equation, ठीक है, whatever are the roots of this equation, simply plot it on the number line. और number line हमेशा कैसे स्टार्ट होगा? फ्रॉम -infinity to +infinity. ठीक है, नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर से लेकर पॉजिटिव में सबसे बड़ा नंबर. ठीक है, ओके, व्हाट इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन? द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 6. सो वंस यू हैव द रूट, ओके, वी हैव द नंबर लाइन, वी हैव फाउंड आउट द रूट. एक बार हमने जब रूट नंबर लाइन में प्लॉट कर लिया, सो ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट कॉर्नर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो फर्स्ट ब्रैकेट होगा और द फर्स्ट सेगमेंट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. जैसे जब आप नंबर लाइन में डिफरेंट रूट्स बनाओगे, जैसे अगर मान लो एक आपने इक्वेशन सॉल्व किया, ठीक है, सपोज दिस इज -infinity, दिस इज +infinity. पहला रूट यहां पर है, दूसरा रूट यहां पर है, और सपोज थर्ड रूट यहां पर है. सो ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट सेक्शन, ठीक है, द फर्स्ट सेक्शन ऑन द राइट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव. दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. And if this is positive, this will be negative. If this is negative, this will be positive. And this is positive, this will be negative. This goes alternate. Positive, negative, positive, negative, positive, negative, like this. Okay, but we have to keep in mind that the first segment will always be positive. Okay, so what do you mean by the first segment is always positive? इसका मतलब ये है कि अगर आप 6 से लेकर इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर चुनो अपनी पसंद का, ठीक है, जो भी नंबर आपको अच्छा लगता है, सेलेक्ट एनी नंबर फ्रॉम 6 टू इंफिनिटी. तो आप देखोगे कि सपोज आई एम कीपिंग एनी नंबर, सपोज 6 से इंफिनिटी के बीच में 10 आएगा ना, तो अगर आपने x की वैल्यू 10 रखी, सो 10 - 6 विल बी व्हाट? इट विल बी ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0. और हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, बट दैट वैल्यू विल बी पॉजिटिव. ठीक है, यानी अगर मुझे देखना है कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, or the value of this expression will be positive. So if you are taking any value which is lying between 6 and infinity, you will be getting a desired result. ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 6 to infinity. लेकिन आंसर को लिखने का भी ना देयर आर, मतलब जो हम आंसर लिखते हैं ऐसे डायग्राम बनाकर तो लिखेंगे नहीं. सो आंसर विल बी रिटन यूजिंग द हेल्प ऑफ
ब्रैकेट्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स. ठीक है, अब ब्रैकेट्स के बारे में समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ओपन ब्रैकेट्स. Okay, and the second bracket is called as closed bracket. So what is the difference between an open bracket and a closed bracket? अगर मैंने open brackets डाला तो क्या फर्क पड़ता है, अगर मैंने closed bracket डाला तो क्या फर्क पड़ता है. Let's try to understand it. तो ओपन ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो मैंने यहां पर ही लिखा, ठीक है, यहां पे जो टू एक्सट्रीम्स है, एक है 6 और एक है इंफिनिटी. सो योर आंसर विल बी लाइंग बिटवीन 6 to infinity. Now suppose I am using an open bracket. ठीक है, करेंटली मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको ब्रैकेट समझा रहा हूं. इफ आई एम यूजिंग एन ओपन ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि योर नंबर विल बी एनीथिंग बिटवीन 6 to infinity, बट एग्जैक्टली 6 विल नॉट बी इंक्लूडेड. इफ यू हैव केप्ट एन ओपन ब्रैकेट, ठीक है, इफ यू हैव केप्ट एन ओपन ब्रैकेट, सो एग्जैक्टली 6 विल नॉट बी इंक्लूडेड. लेकिन इंस्टेड ऑफ ओपन ब्रैकेट अगर मान लो मैंने क्लोज ब्रैकेट रखा, ठीक है, अब आप बोलोगे सर इंफिनिटी में भी क्लोज ब्रैकेट डालो. देखो इंफिनिटी में कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं डाल सकते. क्यों? इंफिनिटी इज अनडिफाइंड एंड इंफिनिटी कोई कुछ है ही नहीं. मतलब आपके मन में जो सबसे बड़ा वैल्यू हो सकता है दैट इज इंफिनिटी. तो आपके मन का हो सकता है वैल्यू बहुत बड़ा हो, ठीक है, मेरे लिए कुछ इंफिनिटी और हो. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मान लो आपने अंबानी के बारे में सोचा कि अंबानी सोचता होगा कि मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से अपना इनफाइनाइट वैल्यू सेट करेगा. लेकिन अगर आप एज अ इंडिविजुअल सोचोगे कि हाउ मच सैलरी यू शुड हैव, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करोगे. सो इन्फिनिटी आप अपने हिसाब से जो सबसे बड़ा नंबर सोच सकते हो ना, दैट इज इन्फिनिटी. सो इन्फिनिटी डिफाइन नहीं, ठीक है. तो इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट्स आता है, ये तो याद रखना, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी कभी इंक्लूडेड नहीं होगा. तो ओपन ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि द नंबर्स आर नॉट, जैसे अगर मान लो मैंने 6 से इन्फिनिटी लिखा, मतलब x की वैल्यू 6 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है. 6 से बड़ी यानी 6.00001 कैन ऑल्सो बी देयर, बट एग्जैक्टली 6 कांट बी देयर. इस केस का मतलब है कि 6 इज नॉट इंक्लूडेड, और इसका मतलब है 6 इज इंक्लूडेड. ठीक है, इस केस का मतलब है कि 6 इज नॉट इंक्लूडेड बट अ नंबर विच इज स्लाइटली बिगर देन 6, फॉर एग्जांपल 6.00001, दैट्स इंक्लूडेड, बट एग्जैक्टली 6 इज नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए या ये होना चाहिए? शुड वी इंक्लूड x की वैल्यू 6 ऑल्सो? अगर मान लो मैंने x की वैल्यू 6 रख दी इस इक्वेशन में, तो क्या होगा? देखो 6 minus 6 is greater than 0. 6 minus 6 is 0. So is 0 greater than 0? Is this condition true? क्या 0 0 से बड़ा होता है? खुद सोचो. नहीं, आप बोलोगे सर 0 तो 0 के बराबर होता है ना, 0 0 से बड़ा कैसे हो सकता? यानी whatever my answer will be, okay, the value of x will not be exactly 6. ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैंने x की वैल्यू 6.1 रखा, 6.1 minus 6, is it greater than 0? Yes, 0.1 is greater than 0. यानी exactly 6 we can't take, but any number that is slightly bigger than 6 we can take. तो आंसर क्या होना चाहिए? क्या हमें 6 को इंक्लूड करना है? No, we don't have to include 6. So the correct answer to the question will be what? It will be 6 to infinity. अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? 6 to infinity. और दिस विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट दिस. ठीक है, तो अब आई बिलीव कि एक क्वेश्चन में तो क्लियर होना थोड़ा मुश्किल है. सो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन. ठीक है, एक ये क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, आराम से देखना जरा, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक इट. Suppose I am taking a very simple quadratic equation. Okay, the quadratic equation is x square minus 5x plus 6 should be less than equals to 0. Okay, suppose we have to solve this inequality. X square minus 5x plus 6 should be less than equals to 0. How to solve this inequality? Okay, what are the different values of x that will satisfy this condition? Means what we want, we have to keep those values of x जिसको रखने से ये क्या हो जाए? ये नेगेटिव हो जाए. लेस देन 0 का मतलब क्या है? इट शुड बी 0. ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. रूट ऑफ दिस इक्वेशन का मतलब क्या है? फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ एक्स जिससे ये क्या हो जाए? ये 0 बन जाए. ठीक है, एक्स के वो वैल्यूज ढूंढने की कोशिश करो जिससे ये क्या हो जाए? ये 0 बन जाए. सो एक्स के कौन कौन से वैल्यूज होंगे? यानी हमें इसके रूट्स ढूंढने. ठीक है, तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे,
सो यूल सी हमें चाहिए क्या, +5 और हमें चाहिए +6. सो 3 and 2. द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट, इट्स 3 and 2. वंस आई हैव द रूट, ठीक है, वी हैव टू प्लॉट इट ऑन अ नंबर लाइन. I'll start from -infinity and will end at infinity. ठीक है, somewhere in the middle I'll have 2, somewhere I'll have 3. ठीक है, तो ये हमने क्या किया, रूट्स को नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया. ऑलवेज रिमेंबर द राइट मोस्ट साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, जो फर्स्ट रीजन है या जो फर्स्ट ब्रैकेट है, ठीक है, इसमें से आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, दैट वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, और इसकी वैल्यू हमेशा उससे ग्रेटर देन 0 होगी, या हमेशा ये पॉजिटिव आएगा. एंड इफ यहां से वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है, यहां का मैं कोई भी x लूंगा इट विल बी नेगेटिव, यहां का कोई भी वैल्यू लोगे ये पॉजिटिव. ठीक है, तो इस बार हमें कौन सा रीजन चाहिए, वी वांट दैट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी एनीथिंग बट इट हैज टू बी नेगेटिव. तो नेगेटिव वाला रीजन कौन सा मिल रहा है, दिस. ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो सकता है, इट विल बी 2 to 3 और इट विल बी एनी नंबर बिटवीन 2 to 3. नो, विच आंसर वी शुड गो फॉर, ये आंसर या ये आंसर, कौन सा आंसर होना चाहिए. क्लियरली सोचो माइंड में कि क्या हम 2 को इंक्लूड करें या 2 को एक्सक्लूड करना है, एग्जैक्टली 2 को इंक्लूड करना है या एग्जैक्टली 2 को एक्सक्लूड करना है. नो, व्हाट विल हैपन इफ यू प्लेस 2 हियर. जब आप एग्जैक्टली x की वैल्यू 2 रखोगे ना, you'll see that this is coming like this. 0 is less than or equals to 0. देखो, since I have a equals to sign also, means 0 is equals to 0. देखो, I need all values of x जिससे ये क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए. ठीक है, या नेगेटिव आंसर आए, लेकिन ये 0 इक्वल्स टू 0 भी तो है, ये भी तो इक्वल्स टू भी साइन है. सिंस इक्वल्स टू साइन है, इसलिए मुझे 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा. इन अ सिमिलर वे आई हैव टू इंक्लूड 3 एज वेल. तो अगर 2 और 3 को भी इंक्लूड करना है, तो आंसर विल ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट, इट विल बी दिस, नॉट दिस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कौन सा ब्रैकेट यूज कर रहे हैं. ठीक है, अगर आपने ब्रैकेट गलत डाल दिया, योर आंसर विल बी मार्क्ड एज रॉन्ग. ऑलराइट, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें और क्वेश्चंस करना है. सो लेट्स प्रैक्टिस सम ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस. So here we have the first question. Okay, now what I want कि before I solve any question for you, it will be much better कि आप अगर खुद से ट्राई कर रहे हो. ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होगा. ठीक है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आपका एक छोटा सा पेज ही वेस्ट होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर सही हो गया मतलब आपने सीख लिया. ठीक है, तो चलो. सो इट सेज दैट 3 times of x minus 1. Okay, it should be 2 times of x minus 3 like this. ठीक है, मतलब ये लेस देन और इक्वल्स टू भी है. हमेशा याद रखना, राइट मोस्ट साइड में मेक श्योर कि 0 आना चाहिए. ठीक है, इससे कैलकुलेशन इजी होगी. सो दिस विल बी 3x minus 3, ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू 2x minus 6. अगर आप ये 2x को भी शिफ्ट कर दोगे तो इट विल बी x, ये -6 अगर आ गया तो +6, यानी ये क्या हो जाएगा, +3. ठीक है, सो नाउ वी हैव दिस रिलेशन टू सॉल्व. x plus 3 should be lesser than or equals to 0. So what should be the values of x such that इसकी वैल्यू या तो 0 आ जाए या तो नेगेटिव हो. x से कौन कौन से वैल्यूज होंगे. सो फॉर दिस अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लॉट इट ऑन अ नंबर लाइन. तो यहां पर आएगा -infinity, यहां पर आएगा +infinity. ठीक है, रूट विल बी प्लेस्ड हियर, तो इसका रूट क्या होगा, it will be -3. Always remember this will be positive. Extreme right is always positive and this will be then negative. तो ये पॉजिटिव, हमें कौन सा रीजन चाहिए, हमें पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए या हमें नेगेटिव वाला, हमें चाहिए कि ये नेगेटिव बन जाए. तो फॉर नेगेटिव द आंसर विल बी व्हाट, इट विल बी फ्रॉम -infinity एंड infinity is always with open brackets, -infinity to -3. अब 3 के साथ whether I'll be putting an open brackets or should I go with a closed brackets. Should I have to include 3 as well? Yes, definitely. क्योंकि अगर आपने -3 इंक्लूड किया, ठीक है, so this will be 0. So 0 is equals to 0. So again the condition is getting satisfied. यानी we have to use a closed bracket here. So answer to the first question will be what? It will be option A. Alright, तो I believe ये question सभी ने कर लिया होगा. Let's try one more question. Which is question number 2. Question number 2 में क्या है, देखो. It says that x minus 2 upon x minus 5 should be greater than 2. Okay, x minus 2 upon
अपॉन x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर दैन 2। ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो अब मुझे फिर से क्या करना है, मुझे x के वो वैल्यूज देखने हैं जिससे ये क्या हो, 0 बने, या इसके रूट्स। सो आई हैव टू लुक फॉर द रूट्स ऑफ दिस न्यूमरेटर आल्सो एंड डिनोमिनेटर आल्सो। ठीक है, न्यूमरेटर का भी रूट्स देखो, डिनोमिनेटर का भी रूट्स देखो। तो x के दो वैल्यूज होंगे, एक तो 2 और एक 5। ठीक है, ओ सॉरी दिस इज 2 आल्सो ना। सो हमें यहां पर हमेशा 0 लेकर आना है, ये चीज हमेशा याद रखना, ऑलवेज ब्रिंग 0 हियर। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स सिंप्लीफाई इट। सो x minus 2 upon x minus 5, simply I am moving it to this side. फर्दर अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x minus 2, ठीक है, दिस विल बी minus 2x minus minus is 10, ठीक है, upon x minus 5 should be greater than 0. So this will be x minus 2x is minus x, ठीक है, minus 2 plus 8 is plus 8 upon x minus 5 is greater than 0. ठीक है, अब क्या डायरेक्टली रूट्स निकाल के प्लॉट कर दे, नहीं, यहां पर एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग इनइक्वालिटी, मेक श्योर जो वेरिएबल है विद द हाईएस्ट पावर, द वेरिएबल विद द हाईएस्ट पावर, ठीक है, मेक श्योर इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, क्या बोला मैंने, द वेरिएबल विद द हाईएस्ट पावर, उसका कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे यहां पर, ठीक है, हाईएस्ट पावर x का ही है, तो इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज -1। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा है, ठीक है, फिर से द वेरिएबल विद द हाईएस्ट पावर, उसका कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां पर ये नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय -1। तो -1 से अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, जैसे इक्वेशन में सॉल्व करते हो। एंड व्हेन वी वर डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज, मैंने वहां पर बोला था कि अगर आप किसी भी नंबर को माइनस से ये करते हो, द इनइक्वालिटी साइन विल चेंज, यानी इनइक्वालिटी साइन अब ये नहीं रहेगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। जैसे ही आपने एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, तो इनइक्वालिटी साइन क्या होता है, वो हो जाता है चेंज। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, विल हैव x minus 8 upon x minus 5 is less than 0। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन में ग्रेटर देन था, लेकिन सिंस इसका जो x है, इसकी कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए हमें इसे पॉजिटिव करना है। ठीक है, अगेन लेट्स प्लॉट इट ऑन अ नंबर लाइन। द टू रूट्स विल बी, one will be 5, other one will be 8। okay, here will have positive infinity and here will have negative infinity। ये हमेशा पॉजिटिव, एक्सट्रीम राइट हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ऑल्टरनेट हमें क्या चाहिए, वी हैव टू गेट द नेगेटिव वैल्यूज। सो नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमें 5 to 8। अच्छा, अब ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्लोज ब्रैकेट होंगे या ओपन ब्रैकेट्स होंगे। देखो हमें तो 0 चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो 5 और 8 के साथ क्या होगा, दोनों ओपन ब्रैकेट्स होगा। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ दिस, अगर क्वेश्चन ऐसा होता सपोज, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस अगर क्वेश्चन ऐसा होता, सो विल दैट बी द आंसर, या आंसर ऐसा होता, या ये भी नहीं होता। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैंने यहां पर इक्वल्स टू साइन डाल दिया तो आंसर ये होगा, सो दिस इज रॉन्ग। व्हाई, देखो as soon as you will keep the value of x as 5, so this will be anything upon 0। anything upon 0 is undefined in maths, यानी we don't have to take the value of x exactly 5। हम x की वैल्यू exactly 5 भी नहीं रख सकते। तो अगर क्वेश्चन ऐसा होता ना, ठीक है, so in that case answer would be 5 and 8 को आप ऐसे डाल सकते हो, क्योंकि ऊपर 0 हो तो चलेगा, 0 will be equals to 0, लेकिन अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। ठीक है, so if the question is without this, answer is this। if the question is with this, answer will be this। it's very important that we are understanding the brackets too। ठीक है, brackets also plays a very crucial role। अब क्वेश्चन में देखना, आपको सारे तरह के ब्रैकेट्स मिलेंगे। ठीक है, so there are some more examples for you to solve, but I'll leave these examples for you to solve। okay, and let's get quickly to jump to the some of the previous year questions। so for example, this is the question number 1। so this question has been taken from CAT 2017's paper। so what this question is, for how many integers n will the inequality n minus 5 into n minus 10 minus 3n minus 2 is less than equals to 0। तो देखो क्वेश्चन वैसा ही है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, रादर दे आर सेइंग हाउ मेनी इंटीजर्स n। ठीक है,
n के कितने इंटीग्रल वैल्यूज हो सकते हैं. So the question we have is n minus 5 into n minus 10, ठीक है, minus 3 times of n minus 2 equals to 0. So first of all, let's simplify this equation. अगर आप simplify करोगे, it will be n square minus 5n minus 10n, so minus 15n plus 50 will have, then we'll have minus 3n, then we'll have plus 6. It should be like this. Okay. Further solving it, it will be n square, it will be minus 18n, and it's plus 54. Okay. Oh, sorry, plus 56. So what are the different values n can have? ठीक है, मुझे 56 चाहिए. 14 into 4 will work, I think. ठीक है. So 14 and 4 are the roots of this equation. Plus 18. हाँ, ठीक है. तो लेट्स प्लॉट इट ऑन अ नंबर लाइन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार आ गया, इसके जो भी रूट्स हैं, ठीक है, इसे क्या करेंगे, नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे. द नंबर लाइन विल बिगिन विद माइनस इन्फिनिटी, विल एंड एट प्लस इन्फिनिटी. द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, वन इज 4 एंड अदर वन इज 14. सो 4 यहां पर आ जाएगा, 14 यहां पर आ जाएगा. दिस इज पॉजिटिव, दिस रीजन इज नेगेटिव, एंड दिस रीजन इज पॉजिटिव. सो व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n वी कैन हैव? अगर मैं इसके आंसर रीजन की बात करूं, द आंसर विल बी फ्रॉम 4 to 14. ठीक है. Or we can say that this bracket we have to use. We have to use close bracket क्योंकि equals to 0 भी चलेगा. So how many integer values now? How many integer values will be there between 4 to 14? And we have to include 4 and 14 as well. So total number of integer values will be what? It will be 11. ठीक है. 4 से लेकर 14 कितने integer value हो जाएंगे? It will be 11. So इसका total answer क्या हो जाएगा? Answer to this question is 11. So there are 11 such integers that will qualify for this equation. ठीक है. कौन कौन से? 4, इवन 4 विल वर्क क्योंकि यहां पर ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट है. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14. ऑलराइट. तो ये क्वेश्चन है कैट 2017 एंड द आंसर इज व्हाट? इट इज 11. ठीक है. लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन. ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, डेफिनेटली देखते हैं कि मजा आया या नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 is simply solve the inequality. ठीक है. So x cube minus 5x square plus 8x minus 4 is greater than 0. अब सबसे चैलेंजिंग चीज जो यहां पर है, ठीक है, कि ये क्यूबिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो हम बहुत आसानी से रूट्स निकाल लेते. अब अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स क्या होंगे? ठीक है. तो एक रूट शायद 1 या 2 तो कुछ है. ठीक है, क्योंकि आई एम जस्ट लुकिंग एट द ऑप्शंस और सारे ऑप्शंस में 1 और 2 तो है. So one root is either 1 or 2. Let's hit and try कि एक रूट 1 है क्या. तो अगर मान लो मैंने 1 रखा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 minus 5 plus 8 minus 4. So 8 plus 1 is 9, 5 minus 4. ठीक है, yes. So from the given equation I can say that one of the root is what? One of the root is 1. So if one of the root is 1, so let's use the long division method. X cube minus 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4, इसे डिवाइड करते हैं. इसका रूट क्या था? 1. यानी इसका ये क्या होगा? x माइनस 1. फैक्टर, अगर रूट 1 है तो फैक्टर क्या होगा? x माइनस 1. ठीक है. इफ द रूट इज 1 द फैक्टर विल बी x माइनस 1. इफ द रूट इज माइनस 1 द फैक्टर विल बी x प्लस 1. ठीक है. लेट्स डिवाइड इट यूजिंग लॉन्ग डिविजन मेथड. दिस इज x क्यूब, तो यहां पर x स्क्वायर आना चाहिए. ठीक है. दिस विल बी माइनस ऑफ x स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ये 0 हो जाएगा. दिस विल बी माइनस ऑफ 4x स्क्वायर. ठीक है. देन वी हैव टू राइट माइनस 4 हियर. सो दिस विल बी माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस 4. वी हैव टू टेक माइनस 4x. ठीक है. सो माइनस 4x इंटू ये, सो माइनस 4x स्क्वायर हो गया, माइनस 4x प्लस 5x. write it here plus 5x. This will be positive, this will be negative. तो ये 0, 8x minus 4x. ठीक है. ये कितना हो जाएगा? 3x. ठीक है. Just a minute. This is x square. So if I'll be multiplying x square minus x square. So this is minus, so this is plus. So this is minus 4x square.
then we have a minus 4x. Minus 4x is minus 4x square, and this will be plus 4x. Sorry, how come I've written 5x? This will be plus 4x, right? Okay, and here I'll also have a 4x. ये minus हो जाएगा, so it will be 4x minus 4. So definitely it will be plus 4, I guess. Okay, 4x minus 4. Okay, so we can say that the equation x cube minus 5x square plus 8x minus 4 should be greater than 0. ठीक है, सॉरी, इस इक्वेशन को जब आप फैक्टराइज करोगे तो इसके जो 2 रूट्स हैं, एक है x माइनस 1 और दूसरे हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. ठीक है, सिंपली व्हाट आई हैव डेड, मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, मैंने क्यूबिक इक्वेशन को सिंपली क्या कर दिया, इसको डिसफर कर दिया, मतलब इसको ब्रेक कर दिया. अच्छा ठीक है, नाउ लेट्स फिगर इट आउट फर्दर. तो जो अनवांटेड चीजें हैं लॉन्ग डिवीजन वाला, उसे मैं इरेज कर रहा हूं. ठीक है, नाउ इट विल बी x माइनस 1. ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखोगे दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर and it should be greater than 0. ठीक है, now when I simplified it I'm getting this. Now this x minus 2 का whole square, keep any value of x, ठीक है, it will always be positive. आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, ठीक है, since it's a square it will always be positive. यानी whether my expression will be a positive value or it will be a negative value, ये कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, वेदर माई वैल्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव ये कौन डिसाइड करेगा? दिस वैल्यू विल बी डिसाइडेड बाय ओनली दिस. इसका कोई रोल ही नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, वट एवर वैल्यू ऑफ x यू आर प्लेसिंग, फॉर ऑल सच वैल्यूज इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो इसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है. इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ इसका है, यानी x माइनस 2 विल नॉट बी योर क्रिटिकल पॉइंट. तो यहां पे जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? 1. तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो क्या होगा? ऐसा, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी और ये 1. आई ओनली राइट 1. 2 विल नॉट बी द क्रिटिकल पॉइंट. क्यों? क्योंकि ये तो कभी 0 बनेगा ही नहीं ना. ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला. तो अगर कोई चीज हमेशा पॉजिटिव है तो वो डिसाइड ही नहीं करेगा कि वेदर ये कंप्लीट इक्वेशन नेगेटिव होगा या नहीं. ये तो हमेशा पॉजिटिव है. तो सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि आपका जो इक्वेशन है वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ आएगा या नेगेटिव वैल्यू के साथ आएगा. अगेन, ये तो हमेशा पॉजिटिव और ये हमेशा नेगेटिव. ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव और ये हमेशा नेगेटिव. हमें क्या चाहिए? वी वांट द रीजन सच दैट दिस एक्सप्रेशन शुड हैव अ पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, ग्रेटर देन 0. यानी आंसर क्या होना चाहिए? 1 से लेकर इंफिनिटी तक के बीच में. ठीक है, योर आंसर विल बी व्हाट? एनीथिंग जो कि 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच में. ठीक है, अच्छा, अब 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच में ये तो मेरा आंसर हो गया. तो क्या मैं 1 को इंक्लूड करूंगा? नहीं, 1 इज नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, क्या मैं इंफिनिटी को इंक्लूड करूंगा? इंफिनिटी शुड ऑल्सो नॉट बी इंक्लूडेड. लेकिन देयर इज वन मोर पॉइंट, ठीक है, जो कि हमारा आंसर नहीं होना चाहिए, और वो वैल्यू क्या होना चाहिए? x इक्वल्स टू 2. अगर आप x की वैल्यू 2 रखो एग्जैक्टली, ठीक है, x की वैल्यू 2 रखोगे, दिस एक्सप्रेशन विल बी 0. सो फिर से वही आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0. यानी इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. यानी ये पूरे रीजन में से, ठीक है, एनीथिंग कैन बी आंसर एक्सेप्ट 2. तो आप या तो आंसर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, या तो आंसर ऐसे लिख सकते हो कि फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, और को आप यूनियन भी लिख सकते हो 2 to इंफिनिटी. और देखो, दो हर जगह हमने क्या किया है? हमने ओपन ब्रैकेट्स लिखा है. यानी वी आर नॉट इंक्लूडिंग 1, वी आर नॉट इंक्लूडिंग 2. हियर आल्सो वी आर नॉट इंक्लूडिंग 2, वी आर नॉट इंक्लूडिंग इंफिनिटी. सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? इट्स 1, 2 to 2, infinity. ठीक है, even you can write answer in this fashion also. It's totally up to you. All right, moving on to the next question. ठीक है, again this is a question. ठीक है, it's a cubic equation. Again इसको वैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे and you'll get an answer. So this question was asked in CAT 2018. So I'm leaving this question for you. Let's try one question that has been asked in a recent exam, which is CAT 2023. ठीक है, let's see the application now. ठीक है, अभी हमने बस ये देखा इनइक्वालिटी यूज कैसे कर रहे थे. ठीक है, मतलब इनइक्वालिटी निकालते कैसे है. अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं.
So it says that if a certain amount of money was divided equally among n persons, each received rupees 352. यानी the total money that the person is having is what? It is n times of 352. क्योंकि अगर मैंने हर एक बंदे को, ठीक है, हर एक एन बंदे को कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, एवरीवन इज गेटिंग 352 352 352, यानी टोटल मनी इज n into 352. नेक्स्ट, however if two person receive rupees 506 each, ठीक है, यानी टोटल मनी में से अगर मान लो मैंने दो लोगों को 506 दे दिया, ठीक है, दिस वाज द टोटल मनी आई हैड, जिसमें से मैंने दो लोगों को 506, यानी टोटल में से इतना पैसा चला गया. So this is the remaining amount now, and the remaining amount is divided equally among other persons. Each of them receives less than or equals to 303. Now the remaining money we have is n into it's n into 352, okay, minus 506. It's 1012 na. 506 into 2 is 1012, and already I have given money to two of the students. तो और कितने बचे? n में से सिर्फ n minus 2. So now this will be the money that each person will be getting now. जो भी remaining पैसा है, and this has to be distributed among remaining people. And according to the question, this money is according to each of them receives either equals to 330 और लेस देन 30. या तो वो 330 के बराबर है, इनको जो भी पैसा मिल रहा है, या तो वो 330 के बराबर है, या तो वो 330 से लेस है. द मनी विच दीज पीपल आर गेटिंग इज आइदर इक्वल्स टू 330 या तो इट इज लेस देन 330. तो सिंपली ये क्या है? इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी. अगर अब इसे सॉल्व किया जाए तो इट विल बी 352n माइनस 1012, ये हो जाएगा 330n, ठीक है, माइनस 660. फर्दर अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 22n, राइट. और अगर इसे मैं इधर ले आऊं तो ये कितना हो जाएगा? 340 350 352 आई गेस ना. 1012 माइनस 660 इज 352, ऑलराइट. ठीक है, 22 से दोनों डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाई 22, 352 divided by 22. ठीक है, if you'll take 22 common out, so we'll have n minus 16, or we can say that n is greater than equals to, या इसको आप चाहो तो पहले नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एंड हियर विल हैव 16. ठीक है, हमें क्या चाहिए? वी नीड दोज वैल्यूज ऑफ x जिससे ये क्या हो जाए, ठीक है, ओ सॉरी ना, हमें चाहिए क्या? देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज, मतलब n का जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है. ठीक है, तो आपका n क्या होना चाहिए? n माइनस 16, ठीक है, या तो ये ग्रेटर देन, सॉरी दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो हमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये वाला जोन आंसर है. तो इसमें से जो सबसे बड़ा वैल्यू n कैन टेक, ठीक है, द बिगेस्ट वैल्यू, ठीक है, that n can take will be what? Just a minute. I think I have not changed the option. ठीक है, the biggest value n can have is what? It will be, n will be what? It will be 60. Okay, I think I haven't changed the options. The options will be 60. Alright, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? It's 60. Team, I'm recording this question again. There was some correction. All right, so let's see this question. Okay, now we'll be moving towards, now we are moving towards the application part of the inequalities. So this question says that if a certain amount of money is divided equally among n persons, each one receives rupees 352. Okay, so there are n people and each person is getting 352 rupees. So can we say that, okay, the total money that initially we had is 352 times of n, because there are n people and every person is getting 352 rupees. Next, however, if two person receive rupees 506 each, okay, and the remaining amount is divided equally among the other person. Now what we are doing, out of this total money, we are giving two person 506 rupees,
ठीक है, 506 rupees. So the remaining amount is divided equally among the other person. Now the leftover amount, which is 352n minus 1012 divided by n minus 2. Now this remaining money is divided among the remaining people. Then each of them receives less than or equals to rupees 330. Now when this remaining money is divided among n minus 2 people, so everyone is either getting 330 or less than 330. ठीक है, यानी ये जो पैसा है या तो वो एग्जैक्टली 330 के बराबर होगा और इट इज लेसर देन 330. सो नाउ वी हैव एन इनइक्वालिटी. सॉल्व दिस इनइक्वालिटी एंड गेट द आंसर. कैसे? सो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 352n माइनस 1012 विल बी 330n, ठीक है, माइनस 660. ठीक है, और वी कैन से दैट 22n माइनस कितना हो जाएगा 352. अगर आप 22 दोनों तरफ से कॉमन ले लोगे तो ये n टाइम्स में और ये -16 टाइम्स. ठीक है, यानी इफ यू विल बी प्लॉटिंग इट ऑन अ नंबर लाइन, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है और यहाँ पर 16 आएगा. सो हमें कौन सा रीजन चाहिए? लेस देन 0. तो ये तो पॉजिटिव रीजन है, तो ये नेगेटिव रीजन हो गया, यानी दिस रीजन इज माई आंसर. So the question is then the maximum possible value n can have. So ये region में what is the maximum possible value that n can take? The maximum possible value that n can take is what? It is 16. Because अगर मान लो मैंने यहाँ पर 16 रखा तो 16 minus 16 is 0. ठीक है, but that is also feasible. So the maximum value n can have is what? It is 16. ठीक है. So this question was from CAT 2023. A very beautiful example of inequalities is used here. Alright, so that's all we have for today's session. So I believe आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, and if you liked it, please hit the like button, and if you want more of such videos, please subscribe the channel also. Also, if you want to have a book, if you want to book one-to-one consultation call or book a strategy call with our experts to resolve your doubts and challenges, okay, please comment MBA and our team will reach to you. So that's all we have in today's session. Thank you for your precious time.